Hello, friends, this is English Phobia, and you are listening to your English teacher. So, if you have came to this video, I know very well that you are aspiring to speak fluent English and you really want to learn how to speak fluent English. So, just drop that topic for a moment and just listen to me carefully. A purpose of any language is just to communicate, guys. So, stop judging people's on the basis of the language they know or anything else. So I'm not saying that you judge people's like this, but I'm saying to those peoples who do this. So it's okay. It was all about a language, and now I will say something about the topics which we are going to learn in this video. So you must have seen our thumbnail in which we had written that we will learn some English sentences, or you can say the short and common English sentences which can be used in daily life, and you can also practice it with your friends and family. So it is very easy now. And yes, first thing is that I should say to you that if you are learning English, then just don't go in the higher level and just start from a basic and easy level of English. Just speak some common things which is easy, and start from the basic level, and after learning it, go up to the higher levels which you want to do, and just speak English as much as you can. Okay, so don't fear that people will laugh at you. It's okay, you are just learning English, and you will have to speak it. Whatever you're speaking, it doesn't matter. If you're doing mistakes, it's okay, do mistake, because people learn from their mistake, and also practice makes a man perfect. So follow this concept, and I must tell you that the vocabulary, phrases, and common sentences are very important in learning a fluent English. So the vocabulary is most important, of course, and after that the common sentence should be also learned by you. And if you want to learn everything, just don't go anywhere, because you have no need to find anything else. Just go to our channel, you will get so many videos related to English learning, and don't be get confused. There is everything which you need. Before getting into this concept, let me introduce you to the short sentences, and after that we will learn the big sentences too, and also we will learn the meanings of that. यू आर स्केर्ड ऑफ वॉट, इसका मीनिंग है तुम्हें किसका डर है. यू आर स्केर्ड ऑफ वॉट, तुम्हें किसका डर है. इट्स नीड टू चेक योर आधार कार्ड, यानी इट्स नीड टू चेक योर आधार कार्ड का मीनिंग है कि आपके आधार कार्ड को जांचने की ज़रूरत है. इट्स नीड टू चेक योर आधार कार्ड, यानी आपके आधार कार्ड को जांचने की ज़रूरत है. यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी प्लीज़ अपना ध्यान रखें. डोंट कीप ऑन शोइंग ऑफ योर एक्सपेंसिव रिंग, डोंट कीप ऑन शोइंग ऑफ योर एक्सपेंसिव रिंग, इसका मीनिंग है अपनी महंगी अंगूठी का दिखावा मत करो, या फिर अपनी महंगी अंगूठी का दिखावा करना बंद करो. तो कीप ऑन, शो ऑफ, ये सारे फ्रेजेस हैं. अगर आपको इनके यूजेस नहीं पता है, और ऐसे कई सारे फ्रेज होते हैं सिंपल जिससे आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके फ्रेजेस वाली प्लेलिस्ट से कई सारे वीडियोस देख सकते हैं जहाँ आपको इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस मिल जाएंगे. सो डोंट कीप ऑन, यानी आप उसी चीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं, तभी हम कीप ऑन को यूज़ करते हैं. तो अपनी महंगी अंगूठी का दिखावा करना बंद करो. He had no need to go there, he had no need to go there. अभी तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं और समझते हैं कि इसका मीनिंग होता है कि उसे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. He had no need to go there, यानी वहाँ जाने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ नन ऑफ़ योर बिजनेस. जब भी हम कहते हैं कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, या फिर ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हें इससे क्या मतलब, लाइक दिस जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम कह सकते हैं इट इज़ नन ऑफ़ योर बिजनेस. विल यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और टी, इसका मीनिंग है कि आप
कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या टी? विल यू लाइक यानी क्या आपको पसंद है, विल यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और टी यानी आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी। ये हम घर आए हुए मेहमान को पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉन्ट्स मी टू लीड द टीम। ही वॉन्ट्स मी टू लीड द टीम का मीनिंग होता है कि वो चाहता है मैं टीम को लीड करूं, यानी मैं टीम की लीडर बनूं। ही वॉन्ट्स मी टू लीड द टीम यानी वो चाहता है कि मैं टीम को लीड करूं। सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही मेड मी जेलस ऑफ हिमसेल्फ। ही मेड मी जेलस ऑफ हिमसेल्फ इसका मीनिंग है कि उसने मुझे खुद से जेलस फील करवाया, यानी उसने ऐसा किया कि मैं उससे जेलस फील करूं, उसकी वजह से मैं उसी से जल रही हूँ, मुझे उससे जलन महसूस हो रही है। सिंपल सा सेंटेंस है गाइस। मेड का यूज़ ऐसे इस तरह से हम करते हैं, ही मेड मी टू डू दिस वर्क यानी उसने मुझसे ये काम करवाया। ही मेड मी जेलस ऑफ हिमसेल्फ यानी उसने मुझे खुद उसी से जलवाया। इसका सिंपल मीनिंग ये बनता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डोंट फोर्स हर टू स्टडी राउंड द क्लॉक। ये भी बहुत सिंपल है। उसे पूरे दिन, राउंड द क्लॉक का मीनिंग होता है पूरे दिन यानी 24 घंटे, तो पूरे दिन पढ़ाई करने के लिए फोर्स मत करो। डोंट फोर्स हर टू स्टडी राउंड द क्लॉक। इट वाज सो सिंपल। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वी आर डूइंग नथिंग एक्सेप्ट वेस्टिंग टाइम। सो वी आर डूइंग नथिंग का मीनिंग है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट वेस्टिंग टाइम यानी टाइम समय फिजूल करने के अलावा, यानी हम कुछ नहीं कर रहे हैं समय फिजूल करने के अलावा, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ द टाइम। और अगर आपके पास अभी भी टाइम है तो इस वीडियो के एंड में आप दूसरे वीडियोस को खोल कर वोकैबुलरी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। अब जब आपको वर्ड्स लर्न हो जाए तो किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करना है, ये देखने के लिए आप हमारे चैनल के दूसरे इम्पॉर्टेंट जो सेंटेंसेस होते हैं वो देख सकते हैं। चलिए लेट्स कम बैक टू अवर पॉइंट। क्या पढ़ रहे थे हम? वी आर डूइंग नथिंग एक्सेप्ट वेस्टिंग टाइम। ओके, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी इसका मीनिंग होता है कि मुझसे उम्मीद मत करो। डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम मी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मुझसे कुछ भी आप एक्सपेक्ट मत करो, यानी मुझसे कुछ भी आप उम्मीद नहीं करो। नेक्स्ट सेंटेंस है इज़ दिस पेन योर्स। इज़ दिस पेन योर्स का मीनिंग है क्या ये पेन तुम्हारा है। एंड नाउ मुझे पता है कि अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड कि ये योर्स क्या है। योर, योर्स, माई, माइन, ये सब जो होता है इसे सेंटेंसेस में दूसरे वे में यूज़ किया जाता है। आई नो इसका मीनिंग तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन दूसरे तरह से ऑफ कोर्स इसे यूज़ किया जाता है। और इसकी यूसेज को समझने के लिए आप हमारे चैनल की प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। एंड माई हिंट फॉर यू वुड बी कि आप पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने माइन, योर्स, हिम, ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया था। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव नो नीड टू डू दिस जॉब। इस सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे हुई समझते हैं। फ़िलहाल इसका मीनिंग होता है कि तुम्हें इस नौकरी को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यू हैव यानी तुम्हारे पास होना, तो हम हैव को इस सेंस में यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नो नीड टू डू दिस जॉब इसका मीनिंग होता है कि तुम्हें यू हैव नो नीड यानी कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हारे पास, यानी तुम्हारे पास कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? किस चीज़ के लिए? टू डू दिस जॉब यानी डू दिस जॉब यानी जॉब को करना। सो यू हैव नो नीड टू डू दिस जॉब, आपको इस जॉब को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम हर सेंटेंस को फॉर्म, कैसे वो फॉर्म हुआ है, हम उसे ऐसे ब्रेक करके यू कैन गो थ्रू इट। तो आप ही अपने आप भी वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। यू हैव नो नीड टू डू दिस जॉब यानी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये जॉब करने की। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। एंड इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। वी विल लुक ऑन योर डाउट। ओके, तो नेक्स्ट है द फूड इज़ एनफ टू ईट। इसका मीनिंग है जो खाना है वो काफ़ी है खाने के लिए, यानी द फूड इज़ एनफ, वो काफ़ी है हद से ज़्यादा, यानी एनफ है खाने के लिए।
नेक्स्ट है दे प्रिटेंड टू बी ग्रेट, वो दिखावा करते हैं महान होने का। दे प्रिटेंड, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं, हालांकि वो है नहीं ऑफ कोर्स, बट दे प्रिटेंड टू बी ग्रेट, यानी वो ग्रेट महान होने का दिखावा करते हैं। आर यू गाइज बॉदर्ड फॉर योर स्टडी, इसका मीनिंग है आर यू गाइज बॉदर्ड, ये एक क्वेश्चन के सेंस में पूछा गया है, इसलिए आर इस एक हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर यू गाइज बॉदर्ड फॉर योर स्टडी, इसका मीनिंग है कि क्या तुम लोग अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हो, यानी परेशान हो, क्या आपको उसकी कोई टेंशन वेंशन है। आर यू गाइज बॉदर्ड का मीनिंग होता है परेशान होना, तो बॉदर्ड फॉर योर स्टडी, पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट है डोंट डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट का मीनिंग है अपमान करना या फिर इज़्ज़त ना करना। सो डोंट डिसरिस्पेक्ट योर ओन पेरेंट्स, यानी अपने खुद के पेरेंट्स को, माता पिता की डिसरिस्पेक्ट मत करो। डोंट यानी डू नॉट, इट्स द शॉर्ट फॉर्म। सो डोंट डिसरिस्पेक्ट योर ओन पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता की आप इंसल्ट नहीं करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो। आई वॉज अबाउट टू गो टू द लाइब्रेरी, ये एक फ्रेज़ के साथ यूज़ हो रहा है, समझेंगे। आई वॉज अबाउट टू यानी इसका मीनिंग होता है करने वाला होना। सो आई वॉज अबाउट टू गो टू द लाइब्रेरी, यानी मैं लाइब्रेरी जाने वाला था। दिस शो इज़ सो वंडरफुल, ये शो बहुत मज़ेदार है। यू मेड माई डे, यानी तुमने मेरा दिन बना दिया, मुझे तो बस मज़ा ही आ गया। यू मेड माई डे का मीनिंग कुछ ऐसा होता है। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द मॉर्निंग शो। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द मॉर्निंग शो का मीनिंग होता है कि मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, किसका, फॉर द मॉर्निंग शो। सो मैं अभी भी सुबह की जो शो आने वाली थी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसका ये बहुत ही सिंपल मीनिंग है। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे जो इसी की तरह सिंपल है। ही टुक केयर यानी ध्यान रखना। अब टुक तो टेक का पास्ट टेंस है। सो अगर आपको लग रहा है कि टुक केयर का मीनिंग होता है ध्यान लेना, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स को अलग तरह से यूज़ किया जाता है, हिंदी में भी तो किया जाता है ना, डिफरेंटली यूज़ किया जाता है, होता है सब। तो ही टुक केयर ऑफ़ मी होल नाइट, इसका मीनिंग है उसने मेरा ध्यान रखा, ना कि लिया। पूरी रात, होल नाइट, होल का मीनिंग होता है पूरा। और एक और होल होता है जो HOLE होता है, उसका मीनिंग होता है छेद। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन इज़ इट गोइंग टू स्टार्ट। व्हेन इज़ इट गोइंग टू स्टार्ट, इसका मीनिंग है कब ये शुरू होने वाला है। व्हेन इज़ इट गोइंग टू स्टार्ट का मीनिंग होता है कि कब ये शुरू होने जा रहा है। तो इस तरह से सेंटेंस का रियल मीनिंग तो यही है, लेकिन आप शॉर्ट में वो मीनिंग भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें एनी वे यूज़ किया हुआ है। मैं बता दूँ एनी वे का मीनिंग होता है एनीवे का मीनिंग होता है ऐसे भी या वैसे भी। हम कहते हैं ना कि वैसे भी होने तो यही वाला है, तो इसलिए हम कहते हैं दे विल रिजेक्ट यू एनीवे, यानी वो तुम्हें वैसे भी रिजेक्ट कर देंगे। दे विल रिजेक्ट यू एनीवे। नेक्स्ट है दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर फैमिली, ये सब, दिस इज़ ऑल यानी ये सब, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर फैमिली यानी ये सब आपके परिवार की वजह से हुआ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है राइट विथ पेन इंस्टेड ऑफ पेंसिल। राइट विथ पेन यानी अपने पेन से लिखो, इंस्टेड ऑफ पेंसिल का मीनिंग होता है पेंसिल के बजाय, यानी पेंसिल के बदले अब पेन से लिखो। And with this we have completed all the sentences which we had to study in this lecture. तो आज हमने जितने भी sentences को देखा है, समझा है, I hope कि आप उसे डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करेंगे। और ऐसे ही वर्ड्स और सेंटेंसेस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि डेली आपके पास ऐसे वीडियोस आते रहें।